Assalamu alaikum. I welcome all of you to our course Investment Analysis and Portfolio Management. Our course code is MBF 702 and this is our introductory lecture. So let's have a look at what we have to study today. Our content is, first of all, I will introduce myself to all of you. So our first topic is course instructor introduction. Then I will describe you the course which you are going to study. I will define it and I will define its scope, goals and objectives, the learning outcomes and course outline. Then I will tell you about course FAQs, frequently asked questions, in which we discuss main definitions of these topics. Then I will inform you about reference books and textbooks that can be used and that will be helpful for you in your course study. Then we will discuss journal glossary to be used in the course, and in the end I will define you the grading scheme of the course. So let us start with my introduction. My name is Mohammad Waqas Sagir and I am associate member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and also an associate member of Public Finance Accountant. I have 10 years of professional experience in assurance and business advisory assignments, and I have been involved in a number of assignments of different companies that are working as a multinational or national companies in Pakistan. So this is my brief introduction, and let us see about a course description. This course begins by describing the investment environment, the various developments in investment theory and the principles and practices of valuation. The analysis of fixed income securities, equity securities, derivative securities together with other securities such as unit trust will then be discussed. The theories, principles, techniques of portfolio management will be presented. So this is a brief description of the course. इस कोर्स डिस्क्रिप्शन को देख के आप घबराइएगा नहीं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल होगी और मेरी कोशिश होगी थ्रू आउट द कोर्स कि मैं आपको बेसिक चीज़ें की ग्रिप और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से दे सकूं, और हर चीज़ को हम शुरू में डिस्क्राइब करेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, तो फिर उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज को भी देखेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्सेप्चुअल जो बिल्डिंग है वो अच्छी हो जाए, ताकि आप अपने नॉलेज को एक अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें. आवर कोर्स स्कोप इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के स्कोप को देख लेते हैं कि इस कोर्स में हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को क्या उसका स्कोप है और उसमें किन चीज़ों को हमने फोकस करना है. द कोर्स इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स थॉरो ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स. जैसे कि इसका नाम आपको डिफाइन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आप लोगों ने इन्वेस्ट करने हैं तो उसको एनालाइज आपको करना होगा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स. और ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होती हैं, किस तरह ये फ्लो होती हैं, ये इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, ओवरव्यू लेंगे ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड देन you will be able to understand fundamental and technical analysis and to implement it in practical scenario.
It will help to perform economy, market and sector analysis for making wise investment decisions. And you will know how to perform company analysis to support investment decisions after going through all these lectures. This course also provides an overview and analysis of key modern valuation methods. The course starts with a brief introduction and a discussion of fundamental definitions. Then we discuss the uses of and general approaches to valuation. The core of the course contains valuation methods applied by financial institutions nowadays, such as methods based on multiple discounted cash flows and others. Please note that only those methods actually applied in modern practice are going to be presented. क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है, आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी, कि मैंने आप लोगों को उस टाइम में डिलीवर करना है, तो इसके लिए उस स्पेसिफिक टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने मैं उन टॉपिक्स को और उन मेथड्स को डिस्क्राइब करूंगा, उनको हम सीखेंगे, समझेंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो टॉपिक्स नॉर्मली इतने कॉमन यूज में नहीं आते, लेकिन उनको मैं डिस्क्राइब कर दूं आपके सामने, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपने क्या क्या टेक्निक्स को देखना है, क्या किन चीज़ों को समझना है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक ब्रीफ और एक आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग दे सकूं ड्यूरिंग दिस लेक्चर्स, जिसके बेस पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप अच्छे तरीके से कर सकें। हमारे दूसरा जो टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसका स्कोप गो थ्रू कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन ओवरव्यू ऑफ द की elements involved in the construction and management of portfolios. After providing a review of the risk-return relationship of financial assets and a discussion of the objectives of constructing different types of portfolios, we proceed to examine how various securities should be combined to form portfolios. We proceed to examine how various securities should be combined to form portfolios that meet these objectives. तो हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि अगर आप लोग या कोई इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका आउटकम वो क्या चाहता है, और उसकी बेस पे आप एनालिसिस कर सकेंगे कि आपने किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है अपने लिए या किसी इन्वेस्टर के लिए। We also review the characteristics of derivative securities and look into how they can be used to manage and protect portfolios. क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके अंदर जितनी चीजें आएंगी वो तो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, आपके सामने प्रेजेंटेशंस में डिस्क्लोज हो जाएंगी, आपके पास हैंडआउट्स में आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो लिंक हैं विद इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जैसे कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ है, और इसके अलावा हेजिंग की रिक्वायरमेंट्स और किस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन सबको हम गो थ्रू करेंगे ताकि आपके पास बेसिक नॉलेज तमाम चीज़ों का। दिस कोर्स विल इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच इज़ अ की एलिमेंट इन पोर्टफोलियो डिज़ाइन। यहाँ पे आपको एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूँ कि इस कोर्स में आप क्या क्या लर्न करने जा रहे हैं, ताकि आपको एक मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हो जाएं उस चीज़ के लिए और एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में आ जाएं। तो उसके बाद हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करेंगे और डिटेल में समझेंगे। वी विल स्टडी एंड अप्लाई द मर्कोडिस पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपम एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस टू डिजाइन पोर्टफोलियोज, to identify under and overvalued securities, to measure price and manage risk, and to evaluate investment performance. We will discuss the pricing of bonds and stock options. You will learn how to manage a bond portfolio and formulate option trading strategies to improve investment performance. क्योंकि as a financial manager, you are not only responsible to analyze the investment and construct a portfolio,
but you are also responsible to manage it and to keep it up to date. और इसमें अगर कोई रिस्क आपको ज़्यादा फील हो रहा है या कोई आपको थ्रेट फील हो रहा है तो उसको प्रॉपरली और टाइमली आप एड्रेस कर सकें, ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो एक इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉपरली अचीव हो जाए और उसको उसके आउटकम मिल जाए। तो ये हमारा कोर्स स्कोप था रिगार्डिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को भी हम देख चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कोर्स स्कोप। नाउ योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स after learning these topics you will be able to explain and apply basic concept of investment analysis। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि एज ए ट्रेनर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि आप लोगों की एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेशन आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और उसकी टेक्निक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिग ग्रिप कंप्लीट हो और वो उसको आपकी इन डेप्थ नॉलेज हो, ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें अपनी जो टेक्निक आपने समझी हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में, अपने क्वेश्चंस में और अपने एग्जाम्स में। और उसको जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट में जाएं, आप एज ए प्रोफेशनल पर्सन आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करें तो वहां पे भी अपनी स्किल्स को आप बिल्डअप कर सकें और उसका अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी कि बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपको आपके सामने जो प्रेजेंटेशंस लेके आऊंगा और जो हैंडआउट्स आपको मिलेंगे उसमें मेरी कोशिश होगी कि एक लेमैन की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, उनके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाए। And you will also be able to analyze and interpret financial data, and you will be able to demonstrate knowledge of investment management। क्योंकि जब आप प्रोफेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि आपने जो एनालिसिस किया उसके रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, उसके रिजल्ट से इन्वेस्टर क्या फायदा उठा सकता है और उसे किन किन सिचुएशंस में इन्वेस्ट करना है, किन सिचुएशंस में इन्वेस्ट नहीं करना। द गोल ऑफ दिस कोर्स इज फॉर ईच स्टूडेंट टू डेवलप अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इसके लिए हम शुरू के 3 से 4 लेक्चर्स अपने लगाएंगे फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर डेवलपिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरह होती है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर जब हम कोर्स डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और जब हम लेक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह हम एक फ्लो में लेके चलेंगे तमाम लेक्चर्स को। द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस कोर्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू मेक रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट सेशन आपको एक अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड आप एक अच्छा डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं तो फिर इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स के बाद हमारे डिस्क्राइब द करंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। आपको इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आफ्टर लर्निंग द कंप्लीट कोर्स, and then obtain and interpret investment information from various sources both traditional and electronic, and analyze the various investment vehicles such as common stock, fixed income securities, derivative securities, mutual funds and exchange traded funds। तो यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजीज के नाम लिख रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है और जब हम इनकी स्टडी की तरफ और इसकी जब इसको हम करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी इजी है और इसके इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना ज़रूरी होगा आपका कि आप इसको इंटरेस्ट के साथ सुने और समझें और जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको साथ साथ दिया जाएगा उसको साथ साथ आप
सॉल्व करते जाएं ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बनती जाए। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इंक्लूड्स relate financial theories of valuation, risk and return, portfolio management and efficient markets to current market conditions। क्योंकि यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे नॉर्मली वो एक थ्योरेटिकल मटेरियल होता है और बुकिश मटेरियल होता है, लेकिन इन सब का पर्पस ये होता है कि आप इसको समझ के उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और जब आप एज ए प्रोफेशनल मैनेजर काम कर रहे होंगे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकें और उसकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे आपको इस वक्त लेनी होगी अच्छे तरीके से। देन आवर कोर्स लर्निंग आउटकम्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द इनहेरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व्ड इन दोज मार्केट्स इन देयर बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपके कोर्स के एंड में जब आप तमाम लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग ले चुके होंगे तो उस वक्त के बाद आपको फाइनेंशियल मार्केट और उसके इनहेरेंट रिस्क रिवॉर्ड्स एक का कंप्लीट आपको देख के आइडिया होने लग जाएगा कि किस तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो और फाइनेंशियल मार्केट्स को किस तरह एनालाइज किया जाता है। And identify key factors, products, services of the market, describe the external factors as macroeconomic forces and government monetary policy issues that impact the products of the markets and which can seriously affect the risk-reward relationship within this area. And you will also be able to know how to deal with capital markets, comprehend the emerging developments and analyze the investment alternatives। क्योंकि आप लोग मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो एक मेरे पार्ट पे ये भी एक बिल्ट इन अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोगों को बेसिक चीज़ों का कुछ आइडिया है, क्योंकि आप बैचलर्स लेवल पे और अपने इनिशियल स्टडीज में ये देख चुके होंगे कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशंस और उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह के आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं हर चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच लेके चलूँगा ताकि आप लोग अगर पहले कर भी चुके हैं तो आप यहाँ पे आप उसको शुरू से देख सकें कि उसकी हर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं और किन चीज़ों को बेसिस बना के अंडरस्टैंडिंग आप और मजबूत कर सकते हैं अपनी। अभी हम एक डिटेल में अपने पूरे कोर्स को देख लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे और किन चीज़ों को हमें फोकस रखना होगा ताकि आप POC पेस पे चलें जिस पेस पे मैं आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जो आउटकम्स हैं, जो कि कोर्स में चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। Explain the choices of alternative firm valuation models। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं उनको समझेंगे कि कहाँ पे ट्रेड होती हैं, कौन लोग ट्रेड करते हैं और इसके साथ क्या क्या एलिमेंट्स फिक्स होते हैं जिनको कंसीडर करना होता है जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जब आप लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो उसके बाद हम उसके वैल्यूएशन मॉडल्स पे जाएंगे, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे और उसमें इनपुट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं, किन किन चीज़ों को कंसीडर करना होता है उनको समझेंगे और उसमें वैल्यूएशन मॉडल्स की हम फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो कि कंपनीज की नॉर्मली होती है इन्वेस्टर्स के बाद जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं स्टॉक मार्केट्स, उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो वो आपको नॉर्मली स्टॉक मार्केट से भी मिल जाती हैं। तो उसको किस तरह एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उसमें किन चीज़ों के थ्रू आप कंप्यूट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं अपने वैल्यूएशन मॉडल्स को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में और वैल्यूएशन मॉडल्स में काफ़ी इनपुट्स ऐसे हैं जो कि आपको
सिंपली यू कैन टेक इट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके बाद जो आपके सामने एक अपीयर हो रही है चीज के डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स। तो इसके बाद जो आपके सामने एक चीज अपीयर हो रही है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। ये वो टर्म है जिसपे हम बहुत डिटेल में एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, काफी इस पे अपना टाइम इसके लिए वक्फ करेंगे, इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसमें जिन चीज़ों को कंसीडर करना होता है, जिन चीज़ों को इग्नोर करना होता है, वो हम डिटेल में वन बाय वन देख लें, इन डेप्थ देख लें, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थ्रू आउट हमारे तमाम लेक्चर्स में ये यूज़ भी हो रहा होगा। और ये वो टेक्निक है जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड होती है फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इसके साथ साथ हम इसके रिलेटिव वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी देखेंगे टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मेक अ ट्रेड रिकमेंडेशन कि बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है ऑन द स्टॉक। तो जो हम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, जिन मेथड्स को देखेंगे, उसके पर्पस आपको समझ आ गया होगा कि उसका पर्पस एक तो जो फेयर वैल्यू डिटरमिन करना है, जो उसकी प्राइस डिटरमिन करना है, मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना है किसी भी सिक्योरिटी का, वो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद उसकी रिटर्न को डिटरमिन करना भी सीखेंगे कि उसका रिटर्न किस तरह डिटरमिन होता है, कब अब इन्वेस्टर को एक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है या और मजीद उसमें इन्वेस्ट कर देना है या फिर सेल कर देना है। एंड देन रिसर्च रेलेवेंट डेटाबेसेस टू लुक फॉर फर्म स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड और मार्केट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट मे सपोर्ट जजमेंट ऑन अ फर्म्स फाइनेंशियल हेल्थ, effectiveness of management, competitiveness, value and growth potential। तो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, क्योंकि आप इन टॉपिक्स को लर्न करके यू आर गोइंग टू बिकम अ फाइनेंशियल मैनेजर, तो आपको ये कोर्स गो थ्रू करने के बाद आपकी ये एबिलिटी हो डेवलप हो जाएगी कि यू कैन बी एबल टू एनालाइज द फर्म्स फाइनेंशियल हेल्थ के एक बिजनेस की क्या हेल्थ है, उसमें क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है और उससे रिटर्न एक इन्वेस्टर कितना अर्न कर सकता है। एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट सिक्योरिटी वैल्यूएशन एनालिसिस एंड ट्रेड रिकमेंडेशन बाय अ प्रोफेशनली रिटन रिपोर्ट ऑन एंड एन ओरल प्रेजेंटेशन। You will be able to collaborate with classmates to share and discuss the work required by the short quizzes conducted in lectures and of the firm valuation assignment। जो कि आपकी ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो इसमें आपके पास को हम क्विजेज वगैरह भी देंगे, तो वो आप अपने जो नॉलेज आपने ऑब्टेन किया होगा थ्रू योर लेक्चर्स, उसी से रिलेटेड होगा, ताकि आपकी एवेल्युएशन कर सकें कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की है। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ आए, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे आपके कि अप्लाई द एम्पेरिकल फाइंडिंग्स ऑन द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस टू डिजाइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। क्योंकि आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस कोर्स, तो आपके पास ये नॉलेज होगा कि आप स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने फंड्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, किन इन्वेस्टमेंट्स में और किस वक्त इन्वेस्ट करना है, ताकि एक कंपनी अपने जो अर्निंग है उसको मैक्सिमाइज कर सके, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई द पोर्टफोलियो थ्योरी टू रैंक एंड सेलेक्ट पोर्टफोलियोज, द CAPM to measure and price risk, explain the popularity of index funds, separate market risk from firm-specific risk, and identify mispriced securities, the theories of the term structure, and the concepts of duration to explain the choice of bonds, derive the linear relationship between risk and expected returns।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी आप थ्रू आउट योर कोर्स सुनते जाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क और रिटर्न। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप थ्रू आउट योर लेक्चर, थ्रू आउट योर कोर्स आपके सुनने में भी आएगा, आपके सामने भी आएगा, आप इसे कंप्यूट भी कर रहे होंगे और इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द ही तमाम के तमाम टॉपिक्स आपके फॉल कर रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट की जब भी बात होगी उसके साथ साथ रिस्क की और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात होगी, जब पोर्टफोलियो की बात होगी तो वहाँ पे भी रिस्क और रिटर्न्स की बात हो रही होगी। तो रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे काफ़ी कंसंट्रेशन रहेगी हमारी फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड, and you will be able to evaluate and compare the performances of managed funds। क्योंकि जब आप ये लर्निंग ऑब्टेन कर चुके होंगे तो उसके बाद आपके पास स्किल्स और आप अपने नॉलेज के बेस पे यू विल बी एबल कि आप एक फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें और उस पर आप प्रेजेंट भी कर सकें कि इस फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या रिटर्न्स हैं, इसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है। एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वायलेशंस ऑफ ए नो आर्बिट्रेज इक्विलिब्रियम एंड आउटलाइन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू एक्सप्लॉइट इट। इस पे हम जो आर्बिट्रेज इक्विलिब्रियम है, आर्बिट्रेज की बात हो रही है तो उसको हम देखेंगे भी और डिटेल में समझेंगे भी कि आर्बिट्रेज कब होता है और इसका मतलब क्या होता है। Apply option strategies to achieve a risk return profile to suit some given market condition। And जब आप लर्निंग अपने ले चुके होंगे, फार्मूलाज के आपके ग्रिप आ जाएगी तो आप फिर आप एक्सेल में भी इन तमाम डेटा को फीड इन करके एक अपना मॉडल ड्राइव कर सकते हैं कि आप उस मॉडल में आप सिर्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स ड्राइव हो जाएंगे। And you will be able to demonstrate your communication, teamwork and leadership skills through discussions and assignments। क्योंकि हम आपको ग्रेडेड डिस्कशंस भी देंगे जिसपे आपको अपने डिस्कशंस को कंक्लूड करके आपको देना होगा और उसके बेस पे आपकी एवेल्यूएशंस होंगी जो कि हम इस ग्रेडिंग स्कीम में भी आगे चल के देखेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कोर्स FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें हमने इस बेसिक चीजें डाली हैं कि जो कि नॉर्मली इस टॉपिक को सुनते ही सबसे पहले जहन में आती हैं कि ये क्या चीजें। तो सबसे पहले व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, shares, bonds and other securities and assets in order to meet specified investment goals for the benefit of the investors. Investors may be institutions, insurance companies, pension funds, corporations, charities, education establishments, etc. or private investment both directly via investment contracts and more commonly via collective investment schemes. तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को, वो ये डिस्क्राइब किया गया है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करेंगे तो उससे आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकें। और ये प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट भी हो सकती है ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज में क्या क्या मेंशन है, शेयर्स भी हो सकते हैं आपके, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ सिक्योरिटीज हो सकती हैं जिसकी टाइप्स को हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और इसमें एसेट्स भी हो सकते हैं और उसका पर्पस ये होता है मैनेज करने का कि इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक तो सेफ रखा जाए और उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जो गोल्स हैं उसके इन्वेस्टर के जो गोल्स हैं वो मीट हो सकें। और इन्वेस्टर्स को इसमें डिफाइन किया गया कि इन्वेस्टर्स आपके किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। वो कंपनीज से लेके, इंडिविजुअल बंदे से लेके कंपनीज भी हो सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, चैरिटीज भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेशंस भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके सामने मार्केट में
वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कोई बाहर से बंदा भी आ सकता है कि जो कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और कुछ उस पर अर्न करना चाह रहा हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की एक शुरू में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे। और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? जैसे कि इसका नाम आपको शो कर रहा है, खुद डिस्क्राइब कर रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी एक पोर्टफोलियो किसी चीज का है जिसको आपको मैनेज करना है। और यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के ही पोर्टफोलियो है और उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीजें डिस्कस होंगी। द मेन रीजन वाई पीपल हैव The main reason why people have professionals manage their portfolios is to leverage their expertise in order to generate maximum wealth from their investments. तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप ऐसे प्रोफेशनल बन सकें इस पूरे कोर्स को लर्न करने के बाद कि आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकें इन द प्रैक्टिकल सिनेरियोज। कहीं आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, या बैंक में काम कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, या एज एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी अपने इन्वेस्टर्स का, अपने क्लाइंट्स का, उसकी इन्वेस्टमेंट को भी सेफ रख सकें और उसको मैक्सिमाइज भी कर सकें थ्रू अ गुड अर्निंग। अ वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो विल नॉट only take care of diversification but also allocate resources per the investors financial objectives and appetite for risk। क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर बनने के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट्स और उसकी क्या रिस्क है, उसके क्या रिटर्न्स हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टर को समझना भी जरूरी होता है कि इन्वेस्टर जो है उसका क्या एपेटाइट है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट से क्या एट द एंड ऑफ द डे उसे क्या अचीव होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी होंगी। और इसकी जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वहां पे आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। बट यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको सामने ये प्रेजेंट किया है कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या आपको कंसीडर करना होगा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किन चीज़ों को आप देख सकते हैं, उसका रीज़न क्या होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करने का। इसके बाद अभी आपके सामने कुछ रेफरेंस और टेक्स्ट बुक डिटेल्स आ रही हैं। इसके अलावा भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन भी और आपके पास बुक्स के फॉर्म में भी, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। यहाँ पे आपके सामने सिर्फ मेजर बुक्स जो कि नॉर्मली यूज होती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जिसमें एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अच्छी एक्सप्लेनेशन मेंशन है, तो उन बुक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय फ्रैंक के रेली एंड काइथ सी ब्राउन। इसमें 3rd और 10th और 13th एडिशन जो है वो काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी यूजफुल है फॉर बिल्डिंग गुड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रासाना चांद्रा ने भी की जो बुक है वो भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी यूजफुल है और आपके लेवल के लिए। इसके अलावा जेरोम बर्नार्ड कोहेन, एडवर्ड डी जिंगबर्ग एंड आर्थर जैकल की जो बुक्स हैं वो भी काफ़ी यूजफुल है। तो ये कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन बुक्स से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी ग्रिप अच्छी मिल सकती है। वेबसाइट्स पे मेंशन है जो कि रियली जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिस ऑथर की, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल, रियली SW कॉलेज और इसके अलावा CFA पब्स, क्योंकि CFA एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे ये बहुत डिटेल में इस टॉपिक्स पे बात होती है, इन टॉपिक्स की बहुत डिटेल में डिस्कशंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आपको इनकी
एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिल सकता है। अभी कोर्स मेथोडोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं कि तमाम कोर्स में आपको क्या मटेरियल अवेलेबल होगा, किस तरह आपको चीज़ें मिलेंगी और किस तरह आपने चलना होगा। कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो कि मेरी तरफ से आपको मिलेगा विल इंक्लूड वर्चुअल लेक्चर जो कि आप अभी सुन भी रहे हैं। इसके अलावा रीडिंग मटेरियल हैंडआउट्स के फॉर्म में मिलेगा जो कि आपको कैंपस से में अवेलेबल होगा और उसमें उसके नोट्स और अवेलेबल होंगे कि उस जो हम डिस्कशन करेंगे उसकी डिटेल्स और उस हैंडआउट्स में अवेलेबल होंगी। इसके अलावा टॉपिक डिस्कशंस वगैरह मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी और क्विजेज कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो चेक हो सके। और ये स्पेसिफिक लेक्चर्स के बाद आपको मिलते जाएंगे क्विजेस, उसके अलावा असाइनमेंट्स और ग्रेडेड डिस्कशंस जिनको आप आफ्टर स्पेसिफिक लेक्चर्स उनको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे तो उसकी बात आपको खुद भी आइडिया होता रहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है और हम भी उसको एनालाइज करते रहेंगे। तो दिस इज द कोर्स मेथोडोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस कोर्स आउटलाइन कि आप जो टॉपिक सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें समझनी होंगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन की, और उसके बाद रिस्क, उसके रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिस्काउंटिंग, और फिर प्रेजेंट वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे, और मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा कि किस तरह एक इन्वेस्टमेंट को एक इन्वेस्टर एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की भी बात करेंगे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, उसकी डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। उसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो इनपुट्स हैं, डेट इज सन कॉस्ट, उसके वैल्यूएशन एप्लीकेशंस, उनको भी समझेंगे। और फिर एक इन्वेस्टर के लिए कि वो किस तरह चूज कर सकता है अपना वैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि इतने ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल हैं तो उसको किस तरह चूज करना है कि किस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सके, उस पर बात करेंगे। उसके लिए डिसीजन ट्री देखेंगे कि किस तरह वो सिलेक्ट करेगा अपने मॉडल को। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बात करेंगे, उसके एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। 1 to मल्टी स्टेजेस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स पे बात करेंगे। ग्रोथ अगर हो जाती है डिविडेंड के अंदर तो उस वक्त इन्वेस्टर को किस तरह उसको टैकल करना है, किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है अपने फार्मूले में, और किस तरह उससे रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात भी करेंगे। और मल्टीपल मेथड्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जिसमें पी और प्राइस और बुक वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसका बीटा और इन तमाम चीज़ों पे हमारी डिटेल डिस्कशन होती रहेगी ड्यूरिंग द लेक्चर्स। और कंपैरेटिव मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन को हम डिटेल में देखेंगे। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, हर एक मेथड के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। क्रिटिसिज्म जो मेथड्स पे हो रहे हैं उसको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। और इसमें जो बीटा पे बात होता है, क्योंकि बीटा एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली हर कॉर्पोरेशन में और हर इन्वेस्टर उसको यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। और रेजिडुअल वैल्यू मेथड आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावा जो वेंचर कैपिटल मेथड है, वेंचर कैपिटल से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन उसका करवाएंगे, और उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कहाँ से सोर्स फंड्स मिलते हैं वेंचर कैपिटल के लिए, वो डिस्कस करेंगे। कैपेक्स बजटिंग पे बात करेंगे, उसके मेथड्स को देखेंगे। रिस्क एस्टिमेशन और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करने भी बात करेंगे। और हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में लास्ट में हम जिस टॉपिक को टच कर रहे होंगे डेट विल बी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, क्योंकि नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं वो मर्जर और एक्विजिशन पे भी काम कर रहे होते हैं कि जो कंपनी मर्ज होने जा रही है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, तो उसमें क्या किन मेथड्स को देख के वो एक अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकता है कि एक्वायरिंग कंपनी बेनिफिशियल है भी या नहीं है।
तो उसके हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, मोटिवेशंस पे बात करेंगे, मर्जर एक्विजिशंस क्यों होता है, साइनर्जीज पे बात करेंगे और इसके वैल्यूएशन मॉडल्स को समझेंगे भी और उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। इसके मर्जर एक्विजिशन के साथ साथ हम फ्री कैश फ्लोज को भी देख रहे होंगे कि फ्री कैश फ्लोज की कैलकुलेशंस किस तरह होती हैं और उसका पर्पस क्या होता है। और दूसरा जो मेन चीज़ है हमारे पूरे कोर्स में, डेट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसमें प्रोसेस को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है, वो हम लेंगे शुरू में। और उसके बाद फिर रिस्क, रिटर्न और अनसर्टेनिटी पे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी कि इन तीनों चीज़ों का लिंक क्या आपस में और ये किस तरह एक इन्वेस्टर एनालाइज करता है और किस तरह इनको टैकल करता है। उसके बाद फिर आपको पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स और डाइवर्सिफिकेशन पे बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों होती है, कब होती है और इसमें किन चीज़ों को कंसीडर करना होता है। कैपिटल मार्केट और मार्केट एफिशिएंसी भी कवर करेंगे और वैल्यूएशन टूल्स पे बात होगी हमारी, और स्क्रीनिंग प्रोसेस पे कि एक इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और शेयर्स, तो उसकी स्क्रीनिंग आप किस तरह करेंगे, उसमें प्राइसिंग किस तरह होगी और फिर आखिर में सिलेक्शन के लिए क्या टेक्निक्स होंगी। ये था हमारा कोर्स आउटलाइन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन हम इस बात की डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेने कि हमारे जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं, क्योंकि आज के लेक्चर्स को इंक्लूड करके आई विल डिलीवर यू 31 लेक्चर्स इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, तो टोटल हमारे 32 लेक्चर्स होंगे। और जो आगे 31 लेक्चर्स हैं उसमें इस कोर्स को किस तरह डिवाइड किया गया है और किस तरह फिर हम 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में यहाँ पे लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो लेट्स हैव अ लुक एट लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन में आप लेक्चर वाइज देख सकते हैं कि लेक्चर वाइज हमने किस तरह टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेक्चर 1 में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की क्यों होती हैं, इसका मतलब क्या है और इसमें किन चीज़ों को कंसीडर करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में काम करने के लिए। तो जब आप एज एन फाइनेंशियल मैनेजर काम करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे होंगे तो आप अपने नॉलेज को किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे और यहाँ पे इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद लेक्चर 2 में हम सिक्योरिटीज़ का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसमें क्या किन चीज़ों को कंसीडर करना होता है। लेक्चर 3 में हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, बाइंग, सेलिंग, और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन कराएंगे ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट्स किस टाइप की होती हैं, कौन सी सिक्योरिटीज़ किस तरह की मार्केट में डील होती हैं और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं और वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे 3 लेक्चर्स और जो चौथा लेक्चर है उसका शुरू का पार्ट ये होगा बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, कि इसमें हम बेसिक चीज़ों को डिटेल में देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी टर्मिनोलॉजीज को और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हमारे थ्रू आउट द कोर्स यूज होते रहेंगे और उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन जो 4 लेक्चर्स हैं, 3 कंप्लीट लेक्चर और 4th लेक्चर का स्टार्ट का पार्ट वो इम्पॉर्टेंट है और उसमें हम डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराएंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और उसके मार्केट से रिलेटेड। फिर चौथे लेक्चर में हम जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं उनको, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स, उन पे बात करना शुरू करेंगे
और फोर्थ लेक्चर में हम जिन मेथड्स को यूज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो होगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड। तो इन दो लेक्चर्स को हम, इन दो टॉपिक्स को हम अपने फोर्थ लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड सेकेंडली पे बैक पीरियड। और फिफ्थ लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, पे बैक पीरियड की, और जो बाकी इसमें टॉपिक्स आ रहे होंगे अदर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको लेक्चर 5 में हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 6 से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू शुरू करेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और इस पे अंडरस्टैंडिंग लेना, इसकी एक एक चीज को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो लेक्चर 6 में हम इसके बेसिक कंसिडरेशंस को देखेंगे और उसमें इसके इनपुट्स को कंसीडर करेंगे और डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे लेक्चर 6 में। इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर 7, 8 और 9, ये 3 लेक्चर्स हैं जिसमें हम अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंप्लीट कर रहे होंगे और इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होता है चीज़ों का। तो इसमें हम काफ़ी टाइम लगाएंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी हम देख रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का विद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर हम एक कंपैरिजन करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स का। जितने भी मेथड्स हम डिस्कस करेंगे उन सब का एक कंपैरिजन करेंगे और इसके साथ साथ लीज और बाय डिसीजंस की जो कंसिडरेशंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 7, 8, 9 का कंप्लीट हो जाएगा इन टॉपिक्स के साथ। लेक्चर 10 से हम रिस्क एनालिसिस शुरू करेंगे और रिस्क एनालिसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, उसकी टेक्निक्स को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेक्चर 10 में कि आप रिस्क को एनालाइज किस तरह कर सकते हैं और उसको टेक्निक्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उसको कम करने की। तो लेक्चर 10 में हम इस चीज़ को कंसीडर कर रहे होंगे। लेक्चर 11 में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, एनविटीज को डिस्कस करेंगे, परपेचुइटी, नेट टर्मिनल वैल्यू एट कैपिटल राशनिंग के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और लेक्चर 11 में हमारा जो मेन फोकस होगा डेट विल बी ऑन कैपिटल राशनिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब लिमिटेड फंड्स हो तो आप अपने फंड्स को कि बेटर यूटिलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं। लेक्चर 12 में हम पूरा का पूरा डिविडेंड को डिस्कस करेंगे, डिविडेंड की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को, कंपनीज कब डिविडेंड पे करती हैं, इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किन चीज़ों को देखती हैं। तो लेक्चर 12 में हम सारे डिविडेंड को डिस्कस कर रहे होंगे, उसके थ्योरेटिकल एरियाज को यहाँ पे हम कवर करेंगे। लेक्चर 13 और 14 में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन कि जब आप सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिस्कशन हम यहाँ से शुरू करेंगे लेक्चर 13 और 14 से, क्योंकि अभी तक जितने भी ऊपर लेक्चर आप डिस्कस कर चुके होंगे उसमें आपको डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा एग्जांपल्स में, लेकिन 13 और 14 से उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन की तरफ हम जाना शुरू करेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, उसमें इनपुट्स जो चाहिए उनको भी 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। तो लेक्चर 13 और 14 के साथ साथ जो टॉपिक्स हमारे मेन टॉपिक्स जिनको हम कवर कर रहे होंगे, तो लेक्चर 13 और 14 के साथ जो चीज़ों पे आपका फोकस होगा और 13 और 14 के साथ जो लिंक एंड चीज़ें वो हम कवर कर रहे होंगे लेक्चर 15, 16, 17 और 18 में, और इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिस्कशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिस्कस करेंगे, उसके डिटरमिन किस तरह करते हैं उसको समझेंगे, और डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ को इसमें आएगा,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आएगा, उसकी टर्मिनोलॉजीज, और जब इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है तो उस पर टैक्स के इम्प्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, इररिडीमेबल डेट को, रिडीमेबल डेट, कन्वर्टेबल डेट एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को। तो वो टॉपिक्स हैं जो कि एक फ्लो में चल रहे होंगे और वो इन 4 लेक्चर्स में जाके कंप्लीट होंगे, और 18 लेक्चर के एंड पे ये हमारे तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इसके बाद जब आप इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट को समझ चुके होंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किस तरह कंसीडर किया जाता है, तो फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। और अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो कि 19, 20, 21 और 22 होंगे, इसमें हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी गियरिंग को, फाइनेंशियल रिस्क को, एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्रेडिशनल थ्योरी और मोडिग्लियानी एंड मिलर्स थ्योरी। तो इन तमाम टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट 4 लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। तो लेक्चर 23 से हम पोर्टफोलियो को शुरू करेंगे, उसमें पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, रिटर्न, स्टॉक रिटर्न्स को, पोर्टफोलियो रिटर्न्स को, यानी पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम डिस्कशन यहाँ से लेक्चर 23 से शुरू करेंगे। और लेक्चर 24, 25 में पोर्टफोलियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, उसमें पोर्टफोलियो रिटर्न को, पोर्टफोलियो प्रोपोर्शंस को, एवरेज रिटर्न, वेरिएंस कोवेरिएंस, सैंपल कोवेरिएंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, पॉपुलेशन कोवेरिएंस, इन तमाम टॉपिक्स की हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो लेक्चर 23, 24 और 25 में हम पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उसकी हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे और यहाँ पे पोर्टफोलियो को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद लेक्चर 26 और 27 में उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम देखेंगे, पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो को किस तरह देखा जाता है, उसमें कंप्लीट पोर्टफोलियो के रिस्क को किस तरह कंसीडर किया जाता है। अगर 2 एसेट पोर्टफोलियो तो फिर आप क्या क्या किस तरह उसमें रिस्क और रिटर्न्स को देखेंगे, और 3 एसेट पोर्टफोलियो तो उसमें किस तरह देखेंगे। और यहाँ पे 26 और 27 में हम इनकी डिस्कशंस को कंटिन्यू रखेंगे। लेक्चर 28 और 29 में आप जब पोर्टफोलियो को समझ चुके होंगे तो किस तरह एक इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है, उसकी डिस्कशन करेंगे। और कैपम पे बात करेंगे, और कैपम के साथ साथ फिर हम सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की डिस्कशन शुरू करेंगे, क्योंकि ये वो रिस्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग और इस पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम एपीवी की भी डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन में किन चीज़ों को कंसीडर करना होता है। लेक्चर 29 और 23 में हम 30th में हम कैपम की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, उसमें अल्फा वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, रिस्क एडजस्टेड वैक को डिस्कस करेंगे, और एक डिस्काउंट रेट किस तरह सिलेक्ट किया जाता है इस पर हम बात करेंगे। और लेक्चर 31 और 32 में जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जिन चीज़ों को देख रहे होंगे वो है बिजनेस वैल्यूएशन, इसमें मर्जर्स, एक्विजिशंस और उनकी जो डिटेल्स हैं, उसके जो मेथड्स हैं, उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो ये वो तमाम लेक्चर्स हैं जिसको हम गो थ्रू कर रहे होंगे टॉपिक्स को। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखी है, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप हो जाए जिस तरह एक लेक्चर का फ्लो चल रहा होगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जब सेम हो जाएगी तो फिर ऑब्जेक्टिव अचीव करना आसान हो जाएगा। लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम ग्रेडिंग स्कीम भी देख लेते हैं कि ग्रेडिंग स्कीम आपकी किस तरह होगी, आपके जो आपकी लर्निंग होगी, आपकी जो नॉलेज होगा, उसको हम किस तरह टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि क्विज आ रहे हैं, क्विज 10% वेटेज होगी। असाइनमेंट्स जो आपको मिलेंगी आफ्टर स्पेसिफिक लेक्चर्स, जो कि 4 असाइनमेंट्स हैं टोटल इस कोर्स में, वो भी उसके भी वेटेज है 10%। वेटेज डिस्कशंस होंगे कुछ जिसपे आपको डिस्कस करके उसको सॉल्व करना होगा, वो 5% की हैं वेटेज उनकी। मिड टर्म जो होंगे, मिड टर्म 2 होंगे,
दो होंगे आपके, और उसकी टोटल वेटेज होगी 25%। जो फाइनल एग्जाम्स होंगे लास्ट में, उसकी टोटल वेटेज होगी 50%। तो ये है 100% की डिस्ट्रीब्यूशन इस कोर्स के, जो आपका नॉलेज जिससे हम टेस्ट करेंगे, उसके ग्रेडिंग स्कीम भी आपसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो आज का लेक्चर जो था वो कंप्लीट इस बात पे था कि हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को डिटरमिन कर लें और उसकी एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ले लें कि हम जो आगे लेक्चर्स इस कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको रिव्यू करने जा रहे हैं और उसकी कैलकुलेशंस को देखने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं वो सेम हो जाए। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरा जो डिलीवरी है वो एक पेस पे आ जाएंगे, तो फिर आप लोग अच्छे तरीके से पिक कर पाएंगे चीज़ों को और लर्निंग आपकी इफेक्टिव भी हो जाएगी और एफिशिएंट भी होगी। तो यहाँ पे हमने आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।